کشتی کی رفتار کیا تھی اور ہم کس طرف جا رہے تھے، میں نے یہ کرنل سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک کیبن میں مصروف رہے تھے۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھتا اونگتا رہا۔ اس وقت صبح کے آثار واضح ہونے لگے تھے جب کرنل میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چائے کے 2 مگ تھے۔ انہوں نے ایک مجھے دیا اور مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے کو بے-تاب تھا۔ مشرق کے ماتھے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، سیاہ اور سرمئی بادل افق پر پھیلے ہوئے تھے۔ تبھی کرنل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا، انقلاب کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اتنی سرخی پھیل جاتی ہے، آزادی کے سحر یوں ہی نہیں مل جاتی۔ پتہ نہیں کتنی سینکڑوں ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے تو سحر نصیب ہوتی ہے۔ بے شک آزادی یوں ہی نصیب نہیں ہوتی، یہ قربانی مانگتی ہے۔ میں نے ان کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر اس آزادی کو ضائع کر دیا جائے یا اس کا غلط استعمال کیا جائے یا آزادی کے اصل ثمرات سلب کر لیے جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آزادی کی حفاظت زندہ قومیں کرتی ہیں، میں نے جوش سے کہا۔ قوم افراد سے بنتی ہے اور ہر فرد اپنی اکائی میں ایک پوری قوم ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ آرزو ہے کہ ہم اپنی آزادی کی حفاظت کریں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اپنی ہی قوم کا ہر فرد اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ وہ اس آزادی کی کس قدر حفاظت کر رہا ہے، یا آزادی کی حفاظت کرنے کی آرزو اس میں ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا، میں نے تو اب تک جو دیکھا ہے ایسا بہت کم ہے۔ میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، یہی تو المیہ ہے۔ وہ سوچ جو اس قوم میں ہونی چاہیے تھی وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ ایک وطن کا مقصد تھا، یہ اپنے مقصد سے آشنا ہی نہیں ہوئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دور آسمان پر نگاہیں ٹکا دی، پھر چائے کا ایک طویل سپ لے کر بولے، زندگی کی بقا واضح مقصد میں اور مقصد آرزو میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ آرزو میں جس قدر تڑپ ہوتی ہے، انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں اتنی ہی بیدار ہوتی ہیں۔ ترقی کی نئی راہیں، کامیابی کی نئی تدبیریں اور عقل کی رسائیاں آرزو ہی کے وطن سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کے اندر وحدت افکار ہی پیدا ہوتی ہے جو بالآخر وحدت کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی مقاصد کی تحلیق کرتی ہے اور کسی بھی مقصد میں کامیابی آرزو کی شدت میں ہے۔ میں نے اپنا سبق دہرایا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولے، آرزو تڑپ ہی نہیں رکھتی بلکہ وہ لذت بھی رکھتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جس کے اندر آرزو کی تڑپ ہے وہی اس کی لذت سے واقف ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور لمحہ بھر دیکھتے رہنے کے بعد بولے، تم اکائی سے صبر کر کے یکتائی کی طرف جا رہے ہو، یہ میں جانتا ہوں، اس لیے تم پر بھاری ذمہ داری فرض ہو گئی ہے۔ تم نے سوال کیا تھا نا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، تو اسی مقصد کے لیے۔ یہ جو ممبئی سے کراچی تک کا سفر ہے، میں اس میں تم پر واضح کر دوں، چاہو تو اپنے گاؤں جا کر پرسکون زندگی گزارو، یا پھر اپنی آرزو کے اپنے مقصد کا تعین کر لو۔ میرے مقصد کا تعین تو ہو چکا کرنل، میں نے کہا تو وہ بولے، کیا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ ہم نے عظیم قربانیاں دی، یہ افق پر سرخی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آزادی کا سورج طلوع ہو گیا، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور اب پاکستان کا مقصد ہے محمد رسول اللہ۔ یہی میری آرزو ہے، یہی میرا مقصد۔ میں نے پورے دل سے کہا تو انہوں نے طویل سانس لی اور گہری سنجیدگی سے بولے، کراچی پہنچ جائے، باقی باتیں وہیں چل کر ہوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور کیبن کی جانب چل پڑے۔ میں اپنے سامنے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ دوپہر ہونے کو تھی جب کشتی کراچی کے مضافات میں سمندر کنارے لگی۔ وہاں پہلے سے کئی لوگ موجود تھے۔ وہ چھوٹی کشتیاں لے کر تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔
कर्नल सरफराज और मैं एक कश्ती में बैठकर खुशकी पर आ गए। सामने ही एक 4 व्हील जीप खड़ी थी। हम उसमें बैठे तो जीप चल दी। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद हम एक फार्म हाउस की तर्ज पर बने हुए घर में आ गए। वहां मौजूद मुलाजमीन में से मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ देर फ्रेश होने में लगी थी कि मुझे खाने पर बुला लिया गया। डाइनिंग टेबल पर 6 लोग मौजूद थे, जिनमें मुख्तलिफ उम्रों के जवान मर्द और खवातीन थे। 7वां मैं वहां जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में कर्नल सरफराज वहीं आ गए। निहायत खामोशी में खाना खाया गया। फकत बर्तनों की आवाजें आती रही थी। खाना खत्म होते ही तेजी से बर्तन उठा लिए गए और चाय सर्व कर दी गई। तभी कर्नल सरफराज बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ हैरियत से पहुंच गए हैं। सबसे पहले अपना तारुफ कराएगा। सब लोग अपना अपना बारी तारुफ करवाएंगे, फिर बात करते हैं। ये कहकर कर्नल ने साथ बैठे हुए एक नौजवान की तरफ देखा। वो तीखे नकूश वाला, जिसकी हल्की हल्की मूंछें और दाढ़ी जैसे अभी उगी ही नहीं थी, मगर स्याह बाल और घने थे। उसकी छोटी छोटी आंखें थी। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जुनैद हूँ। ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर के नजदीक गांव से है। साइंस और टेक्नोलॉजी का तालिब इल्म हूँ। इतनी डिग्रियां तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस जमाने के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने की सलाहियत है मुझ में। अमेरिका में था, सिर्फ मुसलमान होने के नाते से जलील किया गया। बहुत सारे लोग अभी वहां भुगत रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप से समझौता नहीं कर पाया हूँ। उससे आगे सांवले रंग का लंबा तड़ंगा लड़का, मुनासिब जिस्म और मोटी गर्दन वाला नौजवान था। उसने चेहरा ऊपर उठाया और संजीदगी से बोला, मैं अकबर अली हूँ। लोग मुझे इंटेलिजेंट कहते हैं। फॉरेन अफेयर और समाजी तंजीम बहबूद मेरा शोबा है। माजरत हूँ कि मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन वतन परस्त हूँ। आयरलैंड से तालीम ली, दुनिया के बेशतर ममालिक में रहा हूँ। हमेशा अपने मुल्क में इंसानी तजलील के निजाम पर कुड़ता रहा हूँ। मेरा ताल्लुक सिंध के इलाके जामशोरों से है। सख्त चेहरे और सांवले रंग के एक नौजवान ने अपना तारुफ कराया, जिसके नकूश काफी हद तक मोटे थे और अच्छा खासा सेहतमंद था। मैं फहीमुल हक हूँ और लाहौर के नजदीक एक गांव से हूँ। आईटी इंजीनियर हूँ। मैंने तालीम तो अमेरिका में हासिल की है, लेकिन काम अपने वतन में करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने और हैक करना मुझे आता है। यहाँ न आता तो चीन चला गया होता। उसके दाएं गाल पर तिल था और शायद मुस्कुराते रहना उसकी आदत थी। काफी हद तक फरबा माइल मोटी मोटी गालों, गुलाफी आंखों और मोटे मोटे रसीले लबों वाली एक लड़की ने लब वाह किए। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं महविश हूँ। अभी हाल ही में मलेशिया से पीएचडी की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। पंजाब के शहर साहिवाल से मेरा ताल्लुक है। उसके साथ ही एक लड़की बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा सफेद और सुर्ख रंग की, इंतहाई सुर्ख गाल, पतले पतले होंठ और गहरी स्याह आंखें, जबकि उसके बाल भूरे माइल थे। उसे सबकी तरफ देखा और काफी हद तक धीमी आवाज में कहा, जोया मेरा नाम है। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हूँ। तहकीक और तरक्की और इंसानी वसाइल मेरा शोबा है, लेकिन कंप्यूटर मेरा शौक है। बरतानिया से तालीम हासिल की, अब यही रहना है और बहुत कुछ करना है। खूबसूरत और स्टाइलिश, उसके लिबास में रंगों का इम्तिजाज आंखों को भला लग रहा था। चेहरे पर सुर्खी, सफेद रंगत। वो बोली तो उसकी आंखें ज्यादा बातें कर रही थी। मैं गीत हूँ, फैशन डिजाइनर, मगर मीडिया मेरा काम है। मैं इतनी मजहबी नहीं हूँ, समझ ले कि सेकुलर हूँ। कराची से ही ताल्लुक है। मैं जमाल हूँ, पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से ताल्लुक, मुसलमान हूँ। लेकिन आप सब जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
मैंने अपना तारुफ कराया तो कर्नल सरफराज ने सबकी तरफ देखा और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, ये जितने भी शोबे हैं इनके अलावा ये सब तरबियत याफ्ता हैं। पिछले 1 बरस से ये सब मुख्तलिफ जगहों पर वही तरबियत हासिल कर रहे हैं जो तुमने रोही में हासिल की है। अभी 1 माह से ये रोही में थे। इन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान लिया है। ये पिछले 1 माह से तुम्हें देख रहे हैं, वो जो तुम करते रहे हो। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हो गए। ऐसे में एक नौजवान अंदर आ गया। वो मुझे जाना पहचाना लगा। इस पर कर्नल ने कहा, ये एक माहिर के रूप में हमारे साथ फेरी में आया है। सलमान सगीर नाम है इसका। हर तरह के असले और ब्लैक में मार्केट की पूरी मालूमात इसके पास होती हैं। ये मस्तोंग बलूचिस्तान से है। सलमान ने सबकी तरफ देखा और खुशदिली से सबकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और एक कुर्सी पर बैठ गया। हम सब के दरमियान अगर कोई चीज मुश्तरक है तो वो है पाकिस्तान, जो हमारा वतन है। पाकिस्तान वजूद में आया, ये खुशकिस्मती है, लेकिन इसके साथ बदकिस्मती ये हुई कि ये उन हाथों में आ गया जो इस नजरियाती मुमलिकत के खिलाफ रहे और फकत अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत करने पर पूरी तरह डटे हुए हैं। उसे एक फलाही इस्लामी रियासत बनना था, मगर हुआ क्या? यहाँ पर किसी न किसी सूरत में आमरीत मुसल्लत रही। वो निजाम जिसके लिए पाकिस्तान तहलीक हुआ था अब तक ख्वाब है। ये सब इसी जागीरदारी निजाम की वजह से है जो सफेद अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों को मुंतकिल हुआ। कितने दुख की बात है कि इस मुल्क के सारे सम्राट चंद खानदान समेट कर ले जाएं और इंसानी तजलील का निजाम इसके अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाए। 47 से लेकर अब तक हुक्मरानी करने वाले जो इदारे हैं, असेंबलियां हैं, उनमें कितने इन्हीं खानदानों से हैं और कितने अवाम से हैं। इस मुल्क की नाम निहात अशराफिया ही इस मुल्क को कुत्तों की मानद भंबोड़ रही है। इन कुत्तों के बायस कई गिद्ध इस मुल्क को नोचने के लिए राल टपका रहे हैं। इसके साथ मिलकर कई चूहे इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। धीमक ज़दा सोच वाले बेगैरत सियासतदान मुफाद परस्ती की इंतहा किए हुए मुल्क को लूट रहे हैं। वही अंग्रेज वाला असूल कि तकसीम करो और हुक्मरानी करो। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को लसानियत, मजहबी तफरकाबाजी, सूबाई असबियत और इस तरह के कई हानों में बांट दिया है। ये दरअसल उनके बैरियर हैं ताकि अवाम इन्हीं में उलझे रहे और वो मजे से हुक्मरानी करें। इनसे निकलेंगे तो सोचेंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। ये कैसे होगा? ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। मुझे तुम लोगों को लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नल, अमेरिकियों ने वोट के जरिए ये फैसला करना होता है कि किस मल्टी नेशनल कंपनी को खुद हुकूमत करने की इजाजत दे। सो इस वक्त जमहूरियत का तमाशा ये है कि अपने ऊपर सरमायादारों या फिर जागीरदारों को मुसल्लत कर ले। ये जमहूरियत और इसका तमाशा हम समझते हैं। आप हमें ये बताएं कि वो हमारे काम करने की समत क्या होगी। सबसे पहले जुनैद ने पूछा। इस वक्त बैरूनी ताकतें पूरी तरह पाकिस्तान की कमजोर नहीं बल्कि पाकिस्तान को खत्म करने के दर पे हैं। हिंदुओं की साजिश से हमारा एक बाजू कट गया, लेकिन एटम बम की ताकत से जोरे हैदरी हमें अता हो गया। पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसने ये कुव्वत हासिल की। जिस दिन इस ताकत का ऐलान किया गया था उसी दिन से अमेरिकन इसकी मुखालफत में लगे हुए हैं कि ये कुव्वत इनसे छीन ली जाए, और वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमसे ये ताकत छीन नहीं ली जाती। शायद दुनिया को भी मालूम नहीं कि हम जिंदा कौम हैं। अगर बेगैरत और नाम निहाद अशराफिया इस मुल्क को कमजोर करने के दर पे हैं और बैरूनी हाथों में खेल रहे हैं, अपने मफादात के लिए मुल्क से खेल रहे हैं, तो यहाँ गयूर और गैरतमंद लोग भी हैं जो अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। हमने हर उस कुव्वत से लड़ना है,
اسے ختم کرنا ہے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس ملک کے لیے جو کچھ کرنا ہو، جو یہاں وہی نظام لے کر آئے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، تاکہ یہ وہی اسلامی فلاحی ریاست بن سکے جس کا نمونہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے۔ ہمارا نعرہ ہوگا پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرنل، میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے ممبئی سے یہاں کیوں لائے ہیں۔ ہمیں حکم دے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، میں نے پورے جذب سے کہا۔ نہیں، مجھے حکم نہیں دینا، یہ سب تم لوگ خود طے کرو۔ آج اور ابھی سے یہ سب تمہارے ساتھی ہیں اور تم انہیں لیڈ کرو گے۔ تم لوگوں کا رابطہ روحی سے رہے گا۔ میں تم سب لوگوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کرنل سرفراز نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا اور اٹھ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں اس بھاری ذمہ داری کے لیے پوری جان سے لرز گیا۔ یہ لرزہ کسی خوف سے نہیں تھا، بلکہ وہ سرخوشی تھی کہ میں بھی کسی مقصد کے لیے چن لیا گیا ہوں۔ میں نے سب کی طرف دیکھا تو مسکرا دیا۔ انہوں نے ایک جاندار اور بااعتماد مسکراہٹ مجھے دی تو میں سرشار ہو گیا۔ مقصد واضح تھا۔ نیا پیراگراف۔ جسپال اور رونیت نے پیتل کا وہ گڑوا میز پر رکھ دیا جس کا منہ سرخ کپڑے سے بندھا ہوا تھا، جس میں پروفیسر کی راکھ، ان کے جلے ہوئے ناخن اور وہ پھول جسے وہ پھول یا استیان کہتے تھے۔ میز کے دوسری طرف پروفیسر کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اگرچہ ایک عورت ہونے کے ناطے رونیت کور اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، لیکن اسے یہ حیرت ضرور تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو نہیں بہا۔ وہ چند لمحے استھیاں والے گڑوے کو دیکھتی رہی، پھر ہولے سے بولی، رونیت پتر، اسے اسٹڈی روم میں رکھو، پھر آ کر میری بات سنو۔ جی بہتر، رونیت کور نے فرما برداری سے کہا اور برتن اٹھا کر اسٹڈی روم کی جانب چلے گئی۔ پروفیسر کی بیوی اٹھی اور وہ بھی اندر کی جانب چلے گئی۔ جسپال وہاں اکیلا رہ گیا۔ وہ خود پروفیسر کی بیوی کے رویے پر حیران تھا۔ اس وقت اس کی حیرت مزید بڑھ گئی جب اس نے ناشتے کی ٹرے لا کر میز پر رکھ دی۔ اتنے میں رونیت کور بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے بھی حیرت سے دیکھا۔ پروفیسر کی بیوی نے ناشتہ رکھا اور فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر رکھی، پھر بیٹھتے ہوئے بولی، آؤ پترو، پرشاد شک لو۔ تم لوگوں نے رات کا کچھ نہیں کھایا۔ ابھی دل نہیں کر رہا، میں بعد میں، رونیت نے کہنا ہی چاہا تھا تو وہ بولی، کب تک پتر، کب تک کچھ نہیں کھاؤ گی؟ آؤ ناشتہ کرو، پھر کچھ دوسرے کام بھی کرنے ہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ تینوں ناشتہ کرنے لگے۔ اس وقت وہ ناشتہ کر کے چائے پی رہے تھے۔ ابھیجیت سنگھ، گرلین کور اور دوسرے جو ساتھ تھے وہیں آ گئے۔ اس نے چند لمحے بعد سندھو بھی آ گیا تھا۔ سب خاموش تھے، لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ان میں سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ تبھی پروفیسر کی بیوی استھیوں والا برتن لے کر آئی۔ اس نے وہ درمیان میں پڑی ہوئی میز پر رکھا اور پھر ایک طرف صوفے پر بیٹھ کے سب کی طرف دیکھا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھی سوائے جسپال کے۔ وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ ان کی پروفیسر کے ساتھ جذباتی وابستگی کس حد تک ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ تبھی پروفیسر کی بیوی نے اپنے پلو سے بندھا ہوا ایک کاغذ نکالا اور رونیت کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اس کو پڑھ کے سب کو سنا دے پتر۔ یہ خط انہوں نے مجھے 2 دن پہلے دیا تھا اور ساری بات سمجھا دی تھی۔ رونیت کور نے وہ خط پکڑ کر کھولا اور پڑھنے لگی۔ وہ سب یوں متوجہ ہو گئے جیسے گرنتھ صاحب کی کوئی بانی پڑھی جانے والی ہو۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اگر مجھے کسی نے گولی نہ ماری تو میں ان دھمکیوں کے دباؤ میں مر جاؤں گا جو مجھے دی جا رہی ہیں۔ میرا یہ حق تم لوگوں کو اس وقت ملے گا جب میں نہیں ہوں گا۔ مجھے یہ یقین ہے
کہ میرے अंतिम संस्कार के बाद तुम लोगों को जिस पर भी जरा सा भी शक हुआ तुम उसे मार दोगे या खुद मर जाओगे। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, खामोशी से चुपचाप अपनी दुनिया में खो जाओ। ये भूल जाना कि किसी प्रोफेसर ने तुम लोगों को पाला पोसा और परवान चढ़ाया था। अपनी जिंदगी जियो। नंबर 2, इंतकाम लो, लेकिन वो जाती ना हो। हमने धर्म के नाम पर अपनी जिंदगी वक्फ की है और धर्म के लिए ही काम करना है। तुम लोग जत्था बनाकर धर्म के लिए एकजुट होकर काम करो तो समझो मेरी आत्मा शांत रहेगी। मैं समझूंगा मेरा मिशन आगे बढ़ा है। अपना एक लीडर चुनकर उसकी ताबेदारी किसी गुरु की मानित करना, इसी में तुम लोगों की फतह है। इन दो रास्तों के अलावा अगर कोई और बात किसी के जहन में है तो वो मेरी इन अस्थियों को हाथ भी ना लगाए। आगे जो करना है वो तुम्हारा लीडर या गुरु तुम्हें बता देगा। वाह गुरुजी खालसा, वाह गुरुजी की फतह। एकदम से खामोशी छा गई। कितनी देर तक कोई नहीं बोला। आखिर रोनीत कंवर ही बोली, बोलो क्या कहते हो? मैंने तो दूसरा रास्ता चुन लिया है। जिसे पहला रास्ता पसंद है वो अभी जा सकता है, उस पर कोई गिला नहीं होगा। धर्म को कौन छोड़ सकता है रोनीत? हमारा जीना मरना उसी के लिए है। अभिजीत ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा और अपना हाथ आस्तियों वाले गड़वे पर रख दिया। अगले चंद लम्हों में सभी ने उस पर अपना हाथ रखकर एक तरह से हलफ दे दिया। कसम है मुझे अपने गुरु की, जो अब भी हमारा गुरु होगा, उसका हुक्म हम पर फर्ज है। सभी ने इसके साथ ऊंची आवाज में दोहराया। वो कसम देकर अपनी अपनी जगह जा बैठे तो चंद लम्हों बाद प्रोफेसर की बीवी ने कहा, पुत्र ये अस्थियां अब तुम लोगों के हवाले। जब वक्त मिले उसे फतेहगढ़ साहब ले जाकर जल पर वाह कर देना। नहीं, आप हमारे साथ जाएंगी, रोनीत ने तेजी से कहा। वो तुम जब जाओ और हो सके तो मुझे भी ले जाना। ये कहकर वो उनके दरमियान से उठकर चली गई। देखो अब हमने अपना लीडर चुनना है। ये कैसे होगा? अगर गुरुजी को इशारा दे जाते तो अभिजीत अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी अब तक खामोश बैठा हुआ हरपाल बोला, एक हल तो ये है कि हम में से हर एक बंदा उस शूटर को तलाश करे जिसे प्रोफेसर पर गोली चलाई। जो पहले तलाश कर ले वही लीडर। ये ठीक नहीं। इसका मतलब है कि हर बंदा लीडर बनने की ख्वाहिश लेकर निकलेगा। ऐसा नहीं। मेरे ख्याल में हर एक बंदा एक कागज ले और उस पर अपने सिवा उसका नाम लिखे जिसे वो लीडर मान सकता है। जिसे ज्यादा मानेंगे वही लीडर होगा। अभिजीत ने गहरी संजीदगी से कहा तो सभी मान गए। रोनीत कागज ले आई। कुछ देर बाद 6 लोगों की तरफ से जसपाल का नाम आया तो वो चौंक गया। हम तुम्हें अपना लीडर मानते हैं, हरपाल ने कहा। वजह? मैं तो तुम लोगों के दरमियान, उसने कहना चाहा तो अभिजीत बोला, कम से कम मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने तुम में वो देखा जो कम से कम हम में नहीं। तुम्हें मानना होगा, रोनीत ने कहा। ये बहस नहीं है। मैं एक जगह ठहर ही नहीं सकता। ये तो वो हो जो सिर्फ एक जगह ठहर कर तुम लोगों को लीड कर सके। अगर मैं कहूँ कि संदीप को लीडर बना लो, ये बेहतर रहेगा। जसपाल ने कहा तो सिंधु बोला, मैं कैसे? मैं तो फिलहाल तो ये जिम्मेदारी लो, फिर बाद में देखेंगे। जसपाल ने कहा तो अभिजीत सिंह ने उसी वक्त अस्थियों वाले गड़बे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा और सिख धर्म के लिए जान भी देनी पड़े तो दूंगा। उसके बाद सभी ने यही अमल दोहराया तो सिंधु के लिए मजीद कुछ कहने की गुंजाइश ही न रही। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बड़े ही गंभीर लहजे में बोला, तो फिर सुनो, हम आज ही चंडीगढ़ छोड़ देंगे, मगर हमारे कान और आंखें इधर ही रहेंगे। करतारपुर साहब में अस्थियां जल पुरवा करके
यानी राख पानी की नजर करने के बाद हमारा ठिकाना कौन सा होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। फौरन निकलने की तैयारी की जाए। ये कहकर वो उठ गया। अगले ही लम्हे वो सब बाहर जाने लगे। जसपाल रुनीत कंवर के अपार्टमेंट में चला गया। रुनीत कंवर तेजी से सामान के नाम पर अपने कपड़े और लैपटॉप के साथ कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक सी चीजें उठा रही थी। वो बैठा उसे देखता रहा। वो तैयार हो चुकी तो जसपाल ने पूछा, चलें? ओके, रुनीत ने सर हिलाते हुए कहा। वो चंद लम्हे एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे। तभी रुनीत कंवर एकदम से पलट गई। उसने बैग उठाया और जसपाल के साथ बाहर निकल गई। प्रोफेसर की बीवी इसके इंतजार में थी। करतारपुर तक ऐसा वाकया सामने नहीं आया जिससे इन्हें शक हो कि दुश्मन उनके पीछे है। वो 4 गाड़ियों में करतारपुर साहब के गुरुद्वारे जा पहुंचे। उन्होंने पहले जाकर माथा टेका, फिर प्रोफेसर साहब की अस्थियां करीब बहते हुए दरिया सतलज में बहा दी। जल पूर्वा रस्म करने के बाद संदीर उर्फ सिंधु सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब हम वापस चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। हमारा ठिकाना अब जालंधर होगा। यहाँ से हर बंदा अकेले अकेले निकलेगा और मुख्तलिफ वक्त में जालंधर पहुंचेगा। अगर इस वक्त दुश्मन हमारी ताक में है तो उसे लगे हम जालंधर में गुम हो गए हैं या यहीं से कहीं दूसरी तरफ निकल गए हैं। समझो, जालंधर ही में दुश्मन की निगाहों से ओझल होना है। कहाँ मिलना है ये मैं तुम्हें SMS कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में जा बैठा। रुनीत कार चला रही थी। जसपाल पिछले नशिश पर और प्रोफेसर की बीवी उसके साथ बैठी हुई थी। वो तेजी से सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। उसकी सिंधु से बात हो चुकी थी और जालंधर बिल्कुल नजदीक आ गया। तभी उसने एकदम से फैसला करते हुए कहा, रुनीत में जिस मकसद के लिए चंडीगढ़ गया था वो तो हो चुका। वक्त आ गया है कि मुझे अब जाना होगा। इस पर रुनीत कुंवर ने शिद्दते हैरत से उसकी तरफ देखते हुए तेजी से कहा, तुम अकेले कौन होते हो ये फैसला करने वाले? हम तुम्हें इस कदर अहमियत देते हैं कि अपना लीडर मान रहे हैं। अब जबकि वक्त आ गया है तो तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम नहीं जान सकते। मैं तुम लोगों से अलग नहीं हो रहा हूँ, बल्कि जहाँ कहीं भी होगा मैं तुम लोगों से जुड़ा रहूंगा। ऐसी ही तवक्का मैं तुम लोगों से भी रखूंगा। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। उसने आम लहजे में कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। वो बेबसी से बोली, तुम मुझे अपने करीब ही पाओगी। जसपाल ने कहा तो वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, तुम्हें ये बात अब सिंधु को बताना चाहिए। ओके, मैंने कहा और सिंधु को फोन मिला दिया। नया पैराग्राफ। कराची शहर पर शाम ढलकर रात उतर आई थी। हम सब क्लिफ्टन के उस बंगले में थे जो गीत का था। हम सब एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे जहाँ मलजगा अंधेरा था। सामने सफेद स्क्रीन थी जिसके पास गीत किसी लेक्चरर की तरह खड़ी लैपटॉप पर कुछ दिखाने को तैयार थी। उसे बटन प्रेस किया और स्क्रीन की जानिब देखने लगी। स्क्रीन पर एक कच्ची बस्ती का मंजर नमूदार हुआ। एक मकान की छत पर लोग टोलियों में बैठे हुए थे। उन सबके हाथ में ताश के पत्ते थे, पास ही नोट पड़े हुए थे। वो सब 3 पत्ता पर जुआ खेल रहे थे। मंजर बदला तो एक कमरे का मंजर दिखाई देगा। उसमें छक्का पर जुआ खेला जा रहा था। तभी वो फिल्म रोक कर बोली, ये सिर्फ एक इलाके का मंजर नहीं है। ये जुआ कराची के गरीब इलाकों में कैंसर की तरह फैल रहा है। लाखों नहीं, करोड़ों रुपए रोजाना इधर से उधर होते हैं। अब दूसरा मंजर देखे। इस मंजर में लोग पर्चियां ले रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की ये के बाद दीगरे कई तस्वीरें सामने लाएगी। तभी उसने कहा, ये सिट्टा खेला जा रहा है। प्राइज बॉन्ड के नाम पर पर्चियां दी जाती हैं और करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। इसके साथ ही मंजर बदला और एक शख्स को दिखाया गया जो फोन पर बात कर रहा था, साथ ही तेजी से लिख भी रहा था। उसके पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो उससे फीड करते चले जा रहे थे। ये क्रिकेट पर खेला जा रहा है जुआ। ये काम अब सबसे ज्यादा बढ़कर
दूसरे खेलों पर भी होने लगा है। इसमें बात करोड़ों से भी ऊपर चली जाती है। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए रुकी और फिर बोली, मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगी। ये मेरी नजर में आ सकता है और अवामी सतह पर चल सकता है और अवाम देख रही है, तो या तो पुलिस सोई पड़ी है जो इस जुर्म को नहीं देख पा रही। तो मेरा जवाब ये होगा कि नहीं, पुलिस सोई हुई नहीं है, वो जाग रही है और पूरी तरह इस धंधे में मुलविस है। ये देखें, ये पुलिस का अदना सा मुलाजिम है, साजिद नाम है इसका। स्क्रीन पर एक भारी भरकम शख्स का चेहरा उभरा जिस पर हासी करख्तगी थी। ये अदना सा मुलाजिम है, इस जुए की देखभाल पर मामूर है, जो खुद अपनी निगरानी में करवाता है। लेकिन ये इस कदर ताकतवर आदमी समझा जाता है कि जिस इलाके से चाहे अपनी मर्जी से पुलिस ऑफिसरान को तब्दील करवा सकता है। सवाल ये है कि इसे ये ताकत किसने दी? जाहिर है ये माफिया होगा और ये अदना मुलाजिम एक मोहरा जो अवाम के सामने है, अकबर अली ने कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।